First, I'm going to request Member Parliament Telmo, instead of saying a long word afterwards, just like my name, I will request him to come and say a few words to us from the point of view of what the government is going to do for us, and as well as the plan they have for our site, and also the commitments they made before the election. Telmo, sir. Thank you, Swami. We welcome you. Since you arrived, the sun has come out. Since you arrived, the sun has come out. Can I say that as Speaker of the Parliament of Victoria, I'm privileged and honored to be here at the Rockbank Temple and to say to the Swami that the community here is fantastic, that you do so much work for the homeless, not just in your community, but in the broader community, by supporting the Breakfast Club program, by giving so much food to the refugee center, and by giving out to the community so generously. So, sir and Swami, you're amongst great, great people in this area. We welcome you again. I was very honored. And the Parliament of Victoria, you can see our website, welcomed the Swami to the Parliament on Friday. And can I say there was a lot of excitement. Believe me, all political parties, the President, myself, every political party in Victoria said to the Swami, welcome. You're among friends, and I can assure you that you will be in our hearts. You will be in our hearts. And we thank you for your reflections, for the spiritual sharings and wisdom that you left with us in the Parliament, and for the teachings about justice, about equality, and about your concerns for the most needy in the community. For that we thank you, and I ask you to join me in saying to the Swami, thank you, thank you, thank you. Can I say that we are very honored in Victoria to have this wonderful Indian community, Indian-Australian community, and indeed from the world and the subcontinent. They are, as you know, great citizens of this nation. They, as I and others, the councillors included, have come from all parts of the world, and we live in the generous, very generous land of the Wurundjeri people, of the Kulin Nation, the indigenous people of this nation, to whom we pay respect, to the elders past and present. And we respect their generosity for sharing this wonderful land with so many of us. So Swami, from our heart, you and I have made an arrangement. You come to see us in our home, and I will come and see you at your home in India. We will be there with a parliamentary delegation, and we will ensure that we continue to be in contact and to enjoy our friendship. So God bless you. May you have a long, 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 long life. And we thank you for sharing your teachings of yoga, of peace and of harmony, not just with the Indian community, but with the world. And don't we need that, so much of that? Don't we need so much of peace and of harmony? So we thank you. We are grateful for your presence in Melbourne and in Victoria. Thank you. May I now request Councillor Bobden to say a few words from the side of the Melton Council. Thank you for inviting me here today to meet such a special guest, Swami. I'd like to just say on behalf of the City of Melton how proud we are of all the communities of Melton, and especially our Indian community, which is very supportive of our community. Just recently we had Harmony Day, which was a couple of weeks ago, and in the week leading up we had many different festivals and functions happening, which many of you would have attended during that week. It makes it more important that you're part of our community. I, like many of you, come from overseas,
many years ago. And it's important to have all our cultures here. We all enjoy each other's cultures. And once again, welcome Swami Ramdev. Have a lovely afternoon. Thank you. Thank you. I'll also like to invite Mrs. Komal Mehrani. You all know her by your voice and a thrilling voice on SBS Hindi program. She has been a great producer of the program. Komal ji. मित्रों, आप सब से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बाबा रामदेव यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, पदार्पण किया है उन्होंने। और दुर्गा मंदिर के भी कई स्वप्न हैं, वो बाबा रामदेव जी के आने से, आगमन से अवश्य ही साकार होंगे। बात करें हिंदी की तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम सब की भाषा है। भारत के सभी लोग, यूँ कहिए 80% लोग तो हिंदी किसी न किसी हद तक बोल ही सकते हैं, और समझ तो मेरे ख्याल में 90% लोग ज़रूर समझ सकते हैं। हिंदी का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और यहाँ पर भी हिंदी को स्कूलों में पढ़ाने की बात कही जा रही है। तो मित्रों, आप सब से मिलकर बहुत खुशी हुई है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी रामदेव जी का एक बार फिर से आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि हमारी भाषा फूलती फलती रहे और धर्म का विकास होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत धन्यवाद। Once again, thank you. बाबा रामदेव जी के हृदय में जो देश के प्रति जो भावना है, जो देशभक्ति है, उसके लिए चंद लाइनें आपके लिए भी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अभी आपकी तालियों के बीच स्वामी जी का एक बार फिर से अभिनंदन। आपके सम्मुख स्वामी रामदेव जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले देश के बाहर यूके में गया था। My first visit was in UK, second in USA, after then South Africa, Japan, Singapore, and फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में गया। लेकिन मैंने देखा दुनिया का, देखो अपना देश तो सभी को प्यारा होता है, भारत के बाद मुझे सबसे प्यारा देश लगा तो ऑस्ट्रेलिया लगा। और ये देखो, मैं खाली इसलिए नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं इसलिए आपकी बड़ाई कर रहा हूं, ये मैं आपको दिल की बात कह रहा हूं। यहां बहुत सी चीजें हैं जो प्यारी हैं। यहाँ की 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं और बहुत ज्यादा सोशल हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इंडिया में कोई काला पानी नाम बोले तो लोग घबराते थे। तो ये हमारे ब्रिटिशर्स का काला पानी था और आप लोगों ने इस काले पानी को, इस ब्लैक वाटर को गोल्डन वाटर कर दिया। मीन्स इतना ज्यादा पुरुषार्थ किया। अब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां बैठो वहीं जमीन के नीचे कहीं पेट्रोल है, कहीं गैस है, कहीं आयरन है, कहीं कोल है। धरती ने इसको माने असीम ऊर्जा से, असीम ऐश्वर्य से भरा हुआ है। जो हम वेद में मंत्र पढ़ते हैं, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे। और हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने पिछले 10-15 सालों में ऑस्ट्रेलिया को भी आगे बढ़ाया है और भारत का भी नाम बहुत ऊंचा किया है। और हमारे आज के चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट मिस्टर टेल्मो, वो तो हमारे डिवाइन ब्रदर हो गए। यू आर ऑलवेज इन आवर हार्ट्स, इन आवर सोल्स। और मुझे लगता है कि आप लोग आगे और अच्छा करेंगे हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए, यहाँ के हार्मनी के लिए, यहाँ के पीस के लिए, यहाँ के स्पिरिचुअलिटी के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए। और
हमारे बॉब टर्नर जी, एक बार इन दोनों का भी सबकी ओर से जरा अभिनंदन, इतना जोरदार क्या करो। वेलकम मिस्टर टेल्मो एंड मिस्टर बॉब। और आप सब, मैं तो देख रहा हूं अभी ये मंदिर जो है, जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, देखो मैं 100% चैरिटी करता हूं। जो कुछ मेरे पास है 100% फॉर चैरिटी। आई हैव नो सिंगल पेनी। मेरा झोला रखा है, किधर है मेरा झोला? इस झोले के अंदर आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा। बिना 1 रुपए के। और कोई कार्ड होते हैं ना, कौन कौन से कार्ड होते हैं? क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड। आई हैव नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, नो बैंक अकाउंट। ये देखो, ये पूरा झोला इतना सा है, कोई भी देख सकता है, खाली खाली है ये पूरा का पूरा झोला। क्या है? एक संकल्प है कि जो मुझे भगवान ने दिया है वो पूरा मुझे वापस देना है। दिस होल एग्जिस्टेंस फॉर मी एंड माई एग्जिस्टेंस फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। दिस इज माई विजन। तो आप लोग 100% चैरिटी नहीं कर सकते। आपका फैमिली भी है, आपका वाइफ है, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे हैं, तो आप लोग 5 to 10% से शुरू करो। जो आप अर्न करते हो 5 to 10% आपको चैरिटी में लगाना, और सबसे पहले दुर्गा टेम्पल को विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल बनाना है। थोड़ा थोड़ा चैरिटी करो। 5 to 10% यू कैन कंट्रीब्यूट हियर फॉर ए वर्ल्ड क्लास दुर्गा टेम्पल। और मुझे लगता है जब मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया आऊंगा तब तक ये दुर्गा टेम्पल वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, क्योंकि आप भी वर्ल्ड सिटीजन है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सबका है। सब यहाँ वर्ल्ड सिटीजन है। बेचारे अबोरिजिनीज तो ठीक है, बेचारे गुजारा कर रहे हैं। सभी यहाँ पर जो भी हैं सब वर्ल्ड सिटीजन है। और ये जब सब यहाँ पर वर्ल्ड सिटीजन हैं तो दुर्गा टेम्पल भी ऐसा होना चाहिए कि इसमें मंदिर के साथ सोशल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, योगा, आयुर्वेदा, दुर्गा टेम्पल में पूरा हिंदुस्तान दिखना चाहिए। ऐसा करके दिखा दो यहाँ, कंप्लीट हिंदुस्तान, कंप्लीट इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन योग, इंडियन आयुर्वेदा, इंडियन डांस, सब कुछ। यहाँ हीरो हीरोइन को मत नचाना। यहाँ दारू पीने वाले और मांस खाने वालों के ठुमके नहीं लगने चाहिए। आपको यदि यहाँ पर नृत्य भी करवाना है तो भरत नाट्यम करवाना, और दूसरी तरह के अच्छे अच्छे नृत्य हैं। हीरो हीरोइन के डांस मत कराना अपने मंदिर में। हमारे ऐसे भी हमारे कुलवंत जोशी जी, ऐसे तगड़ा ब्राह्मण भी मैंने बहुत दिन के बाद देखा है। ये देखने में क्षत्रिय जैसा लगता है। खड़ा हो जाओ कुलवंत, एक बार जोरदार अभिनंदन है कुलवंत का। ये ठाड़ा पंडित है भाई, ठाड़ा पंडित है और साड़ा पंडित है, हमारा है पंडित। और हमारे श्री हरि जुल्का जी, ये तो बहुत बड़े विद्वान भी हैं। और भाई गौतम प्रभाकर जी, राजेंद्र शर्मा जी, सभी को। और 3 चीजें तो हम सबके पास हैं जो दिखती हैं। 3 विजिबल पावर्स हमारे पास में। देयर आर 3 विजिबल पावर्स विद इन अस, हम सब में है। 1 इज intellectual power, second is emotional power, this is not emotional weakness, emotional power, and third is physical power. पहले आप इन 3 पावर्स का यूज कीजिए। अपने शरीर के एक एक रोम रोम को पुरुषार्थ में लगाइए। मैं बोलता हूं, never do any wrong action, no wrong action, no reaction and no inaction. Every time do right action, positive action. Do positive, be positive, think positive, and always be happy. Stressful nahi, stress free life, stress free life, happy. और ये जी सकते हैं आप। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए,
आपको डिविनिटी चाहिए, आपको अपलिफ्ट होना है, तो सबसे पहले अपने शरीर की ताकत को प्रयोग करो। इसमें भी बहुत ताकत है। पॉजिटिव वर्क में, क्रिएटिव वर्क में, डिवाइन वर्क में, सोशल वर्क में अपने शरीर की पूरी क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करना और अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना। अभी हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं यहां पर, वो क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं, जिम जा करके उनको जंग लग जाता है, उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। देखो, आदमी की बॉडी कैसे होनी चाहिए, उसकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, पूरे शरीर की मांसपेशी ना पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए। शरीर की, आपके चेस्ट की, ब्रेस्ट की, स्टमक की, सारे एब्स। कितने हैं? बोले बाबा जी कितने ऐब हैं? हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है। आजकल कितने ऐब बनाते? 6। देखो, 6 ऐब वालों, ये सिंगल ऐब बाबा है। और ये सिंगल ऐप जब ऐसे बनता है ना सामने से, तब फिर पूरी दुनिया घूमती है। अभी तो खा पी के घुमा रहा हूं। तुम्हारा तो पूरा ठसा ठस भरा हुआ है। तुम आगे से घुमाते तो तुम्हारा पीछे से घुमा। देखो, जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनकी बॉडी क्या हो गई है? स्टिफ हो गई है। अब उनको बोलो ना आगे झुकने के लिए, तो ऐसे आगे नहीं झुकते। को जो जिम जाने वाला है वो यही रुक जाएगा, वो यहां तक मुश्किल से जाएगा, और यहां चला भी गया तो माथा ऐसे नहीं लगा पाएगा। स्टिफनेस आ गई ना, स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में। स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट बॉडी। देखो, अपने अपनी ट्राई करके देखना कितना खींचता है। ऐसे करीब 3-4 इंच खींचना चाहिए। इतना तो सॉफ्ट होना चाहिए। पतली चमड़ी, कहते हैं ना बहुत मोटी चमड़ी का है। इतनी सी ऐसी होनी चाहिए, है? एकदम फ्लेक्सिबल सॉफ्ट बॉडी, और बहुत सुंदर भी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फिगर्स, एकदम फर्स्ट क्लास। इतने अच्छे फिगर्स होने चाहिए कि आपको मॉडल्स, एक्टर्स, सीरियल्स में किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़े। अपनी पत्नी का मॉडल जब खराब हो जाता है तो आदमी की निगाहें इधर उधर जाती है। तो जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं, आप भी अपना मॉडल अच्छा बना के रखो। फिर कहते मेरा पति इधर उधर देखता है, तू सोनी हो जा, तो तेरा पति इधर उधर क्यों देखेगा? और अपने आप को अच्छा बनाओ। और ये हस्बैंडों के भी बैंड बजे हुए हैं, मोटे तगड़े हो रखे, फूल के गुप्पा। शादी हो गई तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कौन सा एवरेस्ट चढ़ गए हो। शादी होने से पहले पतले पतले होंगे, हा? बिफोर मैरिज दे बिकम स्लिम, स्मार्ट, फ्लेक्सिबल, बहुत दिखाने की कोशिश करें। और शादी होने के बाद इधर से पति उधर से पत्नी, कंपटीशन में बढ़ता है। हाँ, किसी का भी पेट मोटा हुआ तो फिर मैं माता रानी से बोलूंगा गड़बड़। सुनो, आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट होना चाहिए। तो सब क्या करना सुबह सुबह? ऐसे बैठ के करो, ऐसे बैठ जाओ,
पद्मासन में. If your body is not flexible, so you can sit in every comfortable pose. और बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल है तो देखो बिना ही हाथ उठाए खाली पैर को उठाया, इधर रख दिया, इधर से उठाया, इधर रख दिया. इतना हल्का होना चाहिए ना, और इतना हल्का होना चाहिए कि पीछे से भी पकड़ लो. देखो ऐसे. बोले बाबा अभी तो 2-2 फीट का फासला है. और देखो विदाउट एनी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं, नो एक्शन, स्टे इन ए सिंपल पॉज, एंड विद इन 1 or 2 minutes you can achieve full energy. कैसे? ऐसे बैठ के और ऐसे उठ जाना. जो अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानता हो इधर ऊपर आ जाओ. Who is the strongest person here? अरे 1-2 तो आओ. हमारे जोशी जी तो हैं, उनको छोड़ दो. और दूसरा देखो, वो पीछे एक मुंडा है, आजा देखता हूं कितनी ताकत है. सरदार कोई नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है. ये मुंडा थोड़ा जोरदार लगा. हाँ, इधर जूते निकाल करके, और फिर जो मैं करूंगा वो करना पड़ेगा. तेरी पैंट फट जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है. हाँ, इधर बैठ, पद्मासन लगा पहले तो. लगा तो लिया छोरे ने. हाँ, अब हाथ ऐसे रख और ऊपर उठा दे, और जब तक मैं ना नहीं बोलूं यहीं रहना. इसके लिए ताली तो बजा दो. अच्छा लड़का है, करने की हिम्मत तो की. कहां पर है छोरा? कोई नहीं, नीचे आजा, फिर उठ जा. कोशिश पूरी कर रहा है. डू अगेन. कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले. इस छोरे के लिए ताली बजाई दो. चलो, अरे एक माला दो, इसको पास हो गया ये लड़का. आप 1 मिनट ऐसे कर लो. ओनली 1 minute. यू डू 1 minute. क्या नाम बेटा? सिमरन. सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना. जोरदार तालियां सिमरन के लिए. 1 मिनट में पसीना आ गया इसको. यू डू ओनली 1 minute दिस. ओनली 1 minute. 1 मिनट ऐसे कर लो, एंड यू गेट कंप्लीट हेल्थ. यू कैन अचीव कंप्लीट हेल्थ. ओनली 1 or 2 minutes. You have no time. I'm Swamiji, very busy person. So you do this easy. और जो जवान बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे भी कर सकते. ये बच्चों के लिए है, बड़े वाले करेंगे तो थोपड़ा फूट जाए, शकल ही बिगड़ जाए. ये बच्चों के लिए.
ये बच्चों के लिए, सब बच्चों को कराना 5 postures. This is one and second. फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये पांचवा. ये बच्चों के लिए, और बड़े वाले ऐसे बैठ जाना. This is Vajrasan for everyone. After food, you can do this. This is very simple and very effective.